ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੋਨਾ, ਅਗਨ ਘਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਇਣਾ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕੀਓ, ਤੈ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭੈਰੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਰਹਾਉ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਸ, ਪਸ਼ੂ ਭਏ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨੀਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ। ਅਨ ਕੋ ਦਰ ਘਰ ਕਬੂ ਨ ਜਾਨਸ, ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਨ ਕੋ ਦਰ ਘਰ ਕਬੂ ਨ ਜਾਨਸ, ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1126 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 5-10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ। ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵੈਸਾਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੈਸਾਖ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ 2-4 ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਖੁਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਕੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 2009 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 9 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
पर हजम किहਨਾਂ ਨੂੰ नहीं होया। सब तो पहला उस कैलेंडर के विरोध में बयान आया RSS के मुखी का, सानू ये कैलेंडर प्रवान नहीं। कैलेंडर बनया सिखां नाल संबंधित ते प्रवान किहनू नहीं। उच्ची बोलो प्यारे हो। हुण ये तो समझ आ गई कि RSS किस तरीके नाल तुहाडियां गुरुद्वारियां च भावें इतिहासक है भावें गैर इतिहासक है उन्हां विच किस तरह घुसपैठ कर चुकी। हुण मैनूं पहलां मैं माफ़ी मंग लेना कि बहुते रागी प्रचारक इस विषय ते गल करन नूं तैयार क्यों, क्योंकि संगत ने विरोध करना है। अगले कहंदे असीं विरोध दा सामना क्यों करिए, असीं बोलांगे चार बंदे जकारा छड्डणगे। गुस्सा ना मनायो। अज हकीकत यह है परिवार विच भी जे तुसी असूलों ते तुरोगे, बेअसूले तुहाडे परिवार के जियां नूं असूलों ते तुरन वाला बंदा चंगा नहीं लगना, भावें वो माँ होवे भावें दादा होवे भावें दादी होवे भावें पिता होवे। हुण सोच के वेखियो, हुण सोच के वेखियो समाज दे विच कोई नहीं चाहुंदा कि मेरा विरोध होवे। इसे करके वो कहंदे ठीक है जी, जिद्दां दा कोई सुनदा उदां दा सुना के राह पाओ। अज जरूरत इस गल दी है सानू, अज लोड़ सानू इस गल दी है कि असीं इस गल दे उत्ते पहरा दईए, सिद्धांत दे उत्ते पहरा देण दा यतन करिए। हुण मूल नानक शाही कैलेंडर दे मुताबक 23 पो 5 जनवरी वो भी हर साल बदलेगा। अच्छा, एक तो RSS के मुखी का बयान आया, दूजे जिन्ने डेरेदार सन संप्रदायी लोग सन उन्होंने यह कैलेंडर प्रवान नहीं होया। उन्होंने अकाल तख्त के राही इस कैलेंडर में फिर तब्दीली लियांदी, बाहरों नानकशाही कैलेंडर रहन दिता, अंदरों सारा बिक्रमी कैलेंडर कर दिता। हर साल फिर डेटा चेंज होंदियां ने, 2-2 संगरांदां करतियां, 2-2 पूर्णमासियां कर दित्तियां, हर एक चीज़ में फर्क पाता। क्यों? क्योंकि वो कदे नहीं चाहते असीं इकट्ठे होईए। एकता विच बड़ा वड्डा बल है, जिहदी प्रतੱਖ उदाहरण अज वापरी जिहड़ी तुसीं वेखी है। जे 3 काले कानून रद्द होए ने, साडे एके ने रद्द कराए ने। जे 3 काले कानून रद्द होए ने, उहदे विच चाहे दिल्ली दा शहरी सी, चाहे पंजाब दे जिमीदार पिंडां च रहने वाले किसान सी, चाहे हरियाणे का सी, चाहे किसी भी स्टेट किसी भी इलाके का सी, हर एक ने अपने वालों बनदा योगदान पाया है। सरकारां दे तख्त हिला के रख दिते ने। एके विच एडी वड्डी ताकत है। पिछले साल इहो ही दिन सी, 25-26 नवंबर तो लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां के किसान दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ बार्डरां ते आण के बैठे सन। असी लगातार उदों तो इत्थे हाँ, साडा टेंट ਸਿੰਘੂ बार्डर लगा है। असी इको बेनती की सी कि एक बाप के 4 पुत्र सन ते बाप के अंतले सवास बाप एक अपने बच्चों को मैसेज देना चाहता सी। उन्होंने खदशा जापिया, डर जापिया, मेरे 4 बच्चे ने, मेरे मरण तो बाद इन्हां चौं ने अलग हो जाना, मेरा कारोबार मेरा बिजनेस जो बनया है ठप हो जाना। उन्हें 4 पुत्रां नूं एक सोटा दिता, डंडा दिता, जाओ तोड़ के ले आओ। 4 पुत्र तोड़ के ले आए। फिर उन्हें कल्ले कल्ले पुत्र नूं 4-4 सोटियां दित्तियां, डंडे दिते, जाओ हुण तोड़ के ले आओ। वो वापस आ गया, कहंदा बापू जी साडे कोलों ये 4 नहीं टुटे। पुछया क्यों? कहंदा कल्ला कल्ला तोड़ना सौखा सी, 4 तोड़ने औखे ने। समझ आई कुछ? जदों पेंडू शहरी पढ़िया अनपढ़ मजदूर किसान सारे इकट्ठे होवांगे, राजनीतिक बंदियां दी की पाया भी अपनियां मन मर्जियां कर जाण। प्रॉब्लम उदों आउंदी है 4 बंदे हक्कां प्रति लड़ते ने, 5 बंदे जाके चपलां चटदे ने लीडरां दी। समस्या उदों खड़ी हुंदी है। अजे भी तुसीं वेखिया होएगा कई बंदे बदो बदी जाके रैलियां विच घुमदे रहे, पर एके ने, सिदक ने, सबर ने एक चीज़ विखा दी जिहड़े लोग कमले कहंदे सी। फिर कमाल की गल, इस अंदोलन च किन्ने घुसपैठ किए गए सरकारां वल्लों, मीडिया वल्लों, नैशनल मीडिया वल्लों किदां दा प्रचार किया गया। कदी उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, कदी किया गया तो किसान है ही नहीं।
ये शब्द भी तुसीं सुने होने ने। ये तो किसान है ही नहीं, किसान तो खेतों 'च बैठे ने। इन्नियां मीटिंगां किसानां नाल होण तो बाद भी मुनकर हो गए तो किसान है ही नहीं। जे किसान नहीं सी ते अज फिर कानून किहदे रद्द कीते ने। एक सच्चे पातशाह महाराज कृपा करे। फिर कमाल की गल, लगातार 1 साल तो बार्डरां ते तुहाडे विचों कई वीर भैणां उत्थे हाज़री लवा के आए ने ते इहो बेनती कीती कि यह अंदोलन कल्ला किसान का नहीं है, हर उस बंदे का है जिहदे घर सवेरे तवे ते रोटी पकदी है। कोई मुनकर हो सकता जी मेरे घर रोटी नहीं पकदी? हर एक दे घर रोटी पकदी है। सवेरे दुध आउंदा है, दही आउंदा है, सब्जियां आउंदियां ने, फ्रूट आउंदा है। हर एक का साझा अंदोलन सी। बस इहो कहना चाहांगा, ये जंग एके दी है, ये जंग सबर दी है, ये जंग अपने सारे इकट्ठे रहन दी है। एक सिर सेरा नहीं जाता। जिन्हें एक चवानी भी योगदान पाया है, जिन्हें लखां योगदान पाया है, हर एक का बनदा योगदान, उस योगदान सिर ते ही अज आपां इत्थों तक पहुँचे हाँ। गुरु कृपा करे ये साडे विच एका इदां बनिया रहे ताकि अगे तो कोई सरकार किसी प्रति भी कोई काला कानून पास करे तो सारे इकट्ठे होके असी अपने हक प्रति लड़ना सीख जाइए। गुरु साहब जी ने गुरु नानक साहब जी तो लैके आप गुरु नानक साहब बारे इहो कहंदे आ ना, वो रब का नाम जपाउण आए सी, फिर बाबर नूं जाबर क्यों किया? वो तो परमेश्वर की गल करन आए सी। राजे शी मुकदम कुत्ते क्यों किया? जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहिंदा पायन घाओ, रात पित कुत्ते हो चट जाओ। मानस खाने करे नवाज, छुरी वगायन तिन गल ता क्यों किया? ਇਹਦਾ मतलब राजे चुली नियाम की। गुरु साहब जी ने किन्ने शब्द जेड़े राजा शब्द वरत के संबोधन करके ये गल्लां कहियां। ਇਹਦਾ मतलब जदों कोई तखत ते बैठता है, सत्ता चाहुंदा है, वो सही इंसाफ करे, इहो ही राजे दे मुढ़ले फर्ज ने। ओदी प्रजा सुखी होवे, वो अपने प्रजा नूं सहूलतां दे सके। मान नाल सिर झुकदा अपने गुरुदेव जी के चरणों च। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत का जाम पीता। लोगों कोलों घरां दीयां लड़ाइयां सूत्र नहीं आउंदियां। प्यो पुत्र की लड़ाई होवे, भरा भरा की लड़ाई होवे, अदालतां चलियां जांदियां ने, तुहानूं माण होएगा अपने गुरु ते। गुरु साहब विच पै के राजियां दीयां लड़ाइयां मुकाउंदे रहे। राजे आपस में लड़ते सी, गुरु साहब विच पैना ते राजियां दीयां लड़ाइयां मुकाउणियां। लड़ो ना भाई। प्रभावित सी गुरु पातशाह जी दे कोलों। तो आओ गुरु बख्शिश करे। गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश पुरब 1 वैसाख नूं है, जिहड़ा जे आपां असूलां मुताबक सिद्धांत मुताबक वेखांगे, वो हर साल विपर की देन मुताबक असी लकीर दे फकीर बने होने आ। ये हंबड़ा मारन की लौड़ है। गुरुद्वारा साहब दीयां प्रबंधक कमेटियां नूं, संगतां नूं सुचेत ते जागरूक होने की लौड़ है। हर साल 1 वैसाख पक्का कर दो। हौली हौली सानू ये गल्लां दे उत्ते पहरा देने की लौड़ है। तो उहदे तो पहला मैं एक बेनती करदा, कत्तक के वैसाख किताब अपने घरां विच लिया के जरूर पढ़ो, नहीं तो तुहानूं तुहाडीआं पीढ़ियां, तुहाडीआं नस्लां, तुहाडे बच्चे, तुहाडे पुत्र धी तुहानूं ये सवाल करनगे। मैं पिछले दिनी अमेरिका एक बेनती की सी, मन लो बाहरलियां कंट्रियां विच साडे पंजाबियां दा बड़ा वड्डा योगदान है। जे वो कल नूं पुछण कि तुसी इत्थे बड़ा वड्डा योगदान पाया साडी कंट्री नूं डेवलप करन च, असी तुहाडे गुरु पातशाह दे प्रकाश पुरब ते सरकारी छुट्टी का ऐलान करना चाहुंदे। सानूं एक दिन दसो, किहड़ा की दसोगे? इदां दसोगे भी ऐरकी 19 नूं आया है जी, अगले साल जदों जिहड़ी डेट निश्चित होएगी असी वो दस देवांगे। तुहानूं एक दिन देना पैना है। जे उन्हां दा 25 दसंबर है, निश्चित है क्रिसमस डे, तो तुहाडा क्यों बदलदा है? कुछ कर नहीं सकते आप इकट्ठे होके? मैं कहना हुण ही मान लईए कि हौली हौली सानू हुण पिंडां शहरां विच, पहला लोग पिंडां वालिआं नूं कहंदे सी एवें ही है, पर नहीं, हुण बहुतियां पिंडां विच 1 वैसाख नूं गुरु नानक साहब दा प्रकाश पुरब मनाउण लग पे ने। एक ऐस अंदोलन ये भी चीज़ दसता, आम पता सी जिहड़ा किसान है उन्हें तो सिर्फ बीज पाउण दा ही पता है। जदों किसान दे पुੱਤ दे सामने कोई पत्रकार मैं करदा सी, वो इंटरव्यू दे सकदा सी।
ਉਹ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗਟਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਲੋਕ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾ ਕੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਦੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, बड़े बड़े डॉक्टर PGI तो आन के चंडीगढ़ तो इधरों दिल्ली तो किन्ने डॉक्टर मान महसूस कर दियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ अजे स्टडी कर रही सन साडियां भैणां वीर ਉਹਦੀ टीम विच काम करन च कि सानू पहली बार पता लगा वड्डा बंदा वो नहीं हुंदा जिन्हों को पानी दा गिलास फड़ावे, वड्डा बंदा वो हुंदा जिहड़ा आम बंदियां नू जफी पावे। साडे लीडर ते उदों पाउंदे जदों वोटां दे दिन हुंदे ने। तो जे तुहाडे विचों किसी दा धी पुत्त बाहर होवे पुछ के वेखियो, उत्थे मंत्री मिनिस्टर आम ही लोकां विच तुरे फिरदे ने। इत्थे इत्थे बंदे दे 4 बंदे पिछे होणगे, 4 बंदे बोलो जी अगे हुंदे ने। पता लगे भी ये कोई मामूली बंदा है ही नहीं, पब्लिक ने उन्होंने बनाया। तो आओ गुरु बख्शिश करे। मैं इहो कहना चाहुंदा जे जित होई है तो सारियां दा सहयोग है, सारियां ने अपना बनदा योगदान पाया है। भावें वो देश का भावें विदेश का हर नागरिक ने अपना बनदा योगदान पाया। हिंदू परिवारां ने पाया योगदान, मुसलमान साडे भरा टिकरी बार्डर मलेरकोटले दे इत्थे कुंडली ਸਿੰਘੂ बार्डर लिया के उन्होंने लंगर ला छड्डे, सेवावां कीतियां। कई उत्थे इहो जे वीर जुत्ती गंढण वाले जिन्ना किसी को बनता सी योगदान उन्होंने लिया के पा दिता, जो किसी बंदे को सी उन्हें निशावर कर दिता। जिदन मैनूं अज भी याद है दरबार साहब के रागी जदों आए 15-20 जथे इकट्ठे होके ते आ पानीपत दे इलाके एक बजुर्ग 2-2.5 किलो मूंगफली लैके ते वंड रहा सी। ते एक वीर विचों गड्डी दे उतर के पुछदा बापू ये की? कहना मैं मूंगफली का लंगर लाया है। कहता बापू किदां? कहना मेरे को पैसे ही इन्ने सी। हुण बंदे कोल जिन्ने पैसे सी वो 1.5-2 किलो मूंगफली नूं भी लंगर कह रहा सी। ये विरासत है साडी, ये विरसा है, ये कल्चर है, ये सभ्यता है, ये सिक्ख्या गुरु नानक साहब तुहाडी है। जदों गुरु नानक साहब ने आख्या सी सिद्धो वंड के छको, तो सिद्धा ने आख्या बाबा हर चीज़ वंडी जा सकती है। कहते हाँ जी, एक तिल दिता, कहते बाबा वंड के विखा। महाराज कहते नीयत होवे भी वंडिया जा सकता है। कहते वो किदां? कहते हुणे दस दिंदे आ। एक डंडा कुंडा मंगाया, मरदाना लिया, उहदे विच तिल रखिया घोट के, जिन्ना उहदी कैपेसिटी सी उह पानी पाया। कहते लियाओ घुट घुट सारे पी लो। नीयत होवे ते तिल भी घोट के वंडिया जा सकता है, ना नीयत होवे ते लोग कीमती पदार्थां नूं भी जिंदरे मार लैंदे ने। इस अंदोलन ने बड़ा कुछ साफ किया, सच है। लोग बिल्डिंगां ते सोना चढ़ाउंदे सी ना, सुनिया ना, इमारतां ते मंदिरां ते गुरुद्वारे दे कलश वास्ते वो भी तरले लेने पैंदे सी कि इत्थे सोना चढ़ना, इत्थे पालकी बननी, सोना दिओ। फिर जाके कोई दिंदा सी, भावें गुरु नूं सोने की लोड़ नहीं सी। पर किसानी अंदोलन च वेखिआ पिछले दिन एक दीवान च एक बजुर्ग आया, वो लिफाफा फड़ा गया कि पुत्रो तुसीं उत्ते किसानां दी सेवा कर रहे हो। जदों आण के उस लिफाफे नूं असीं टेंट भी जाके खोल के वेखिआ 5000 रुपया ते सोने की चैन सी उहदे विच, रमेश नगर। ते कमाल की गल, जदों सोने की चैन असीं वेचण वास्ते अपने वीर नूं दित्ती कि वेच के जिन्ना पैसा किसानी अंदोलन ते लाउणा, जिहड़े उस चैन नूं परखण वाले पारखू बंदे जिन्हां ने उस सोने नूं परखना सी, जदों उन्हां कोल गया उन्हां कहा 11000 साडे वल्लों सेवा भी पाओ। ये किसानां दी जंग लड़ रही है। तो अज की गल है, अज एक भैन फिर सोने की चैन एक लिफाफे च पा के ते 5000 रुपया नाल दे गई है। ये तो पता लगदा ये अंदोलन किद्दां पब्लिक दे हिरदियां विच अपनी जगह बना चुका सी। एवें नहीं तखत हिले, एवें नहीं अगले ने कहा मेरी तपस्या च किते कमी रह गई है।
नहीं तो सरकारों को लिखे हुए बनाए हुए कानून वापस लेना कोई सौखी गल बोल के दस्यो नहीं है, क्योंकि ये अंदोलन ट्रालियां च उठिया सी। ये अंदोलन ट्रालियां चों आसा की वार ते जपजी साहिब दी विचार च उठिया सी, जिथे सवेरे उठ के बुजुर्ग गुरबाणी पढ़ते सी, शामी सोदर दा पाठ करते सी, सवेरे उठ के झाड़ू पोचे लाउंदे सी। 10 दिन किते घरों बाहर रहीए तो लागे गंदगी पै जाती है। पिछले साल 25-26 नवंबर दे आए ने, जाके सफाई वेखो उत्थे। मैनू ये विश्वास है जिस दिन उठ के जावांगे बाद विच गंद ज़्यादा होएगा, हुण सफाई ज़्यादा है। सड़कों ते झाड़ू लगते ने, पोचे लगते हैं। सवेरे कई सवेरे तैयार होके किसानों ने उन्होंने चाह का केटल बना के रखा हुंदा, चाह पींदे ने, नाल 2 रस लेंदे ने, अपनी जॉब ते जांदे ने। सरकार नूं दस दईए जिदन इत्थों उठ के चले गए बहुतियां दा जी नहीं लगना। बहुतियां नूं महसूस होना जदों घर जाके चाह बनाउणी पैनी है। इस अंदोलन ने बड़ा कुछ सिखाता, बड़ा कुछ। हर एक पक्ष का लंगर लगा, हर एक पक्ष का। तुसीं अपनी जिंदगी च कदी बदामां दा लंगर लगा वेखिया सी? फ्रिजां दा लंगर, कूलरां दा लंगर, पखियां दा लंगर, ये कित्थों होया? ये गुरु नानक साहब तुहाडी विचारधारा दी देन है। तुसीं अपने बच्चों नूं, अपणियां धीआं नूं सिखाता अपने हक्कां प्रति इदां भी लड़िया जा सकता है। सचेत हो के मोढे नाल मोढा जोड़ के लड़ना है, ताकि अगे तो सरकारां कोई भी इहो जिहा काला कानून पास कर लगिया 100 वार सोचण कि इन्हां नाल पंगा ना लिओ। ये आण के दिल्ली के बार्डरां ते बोलो जी बह जांदे ने। कई बंदे भुगतते रहे सरकारां दे हक विच, बेनीफिट दसदे रहे। कमाल की गल, किसानां ने मजबूर कर दिता मंत्रियों नूं अस्तीफे देण लई। अकालियां दे कई लीडर ऐसे सी जिहड़े पहलां बेनीफिट दसदे रहे इसे ही काले कानून दे, भी इहदा आ फायदा, इहदा आ फायदा। जदों अगलियां ने घेरा पाया, हुण अज एक बंदा लिख रहा सी, साडे वीर विखा रहा सी, वो कहंदा कानून ते 3 रद्द हो गए, हुण आ जिहड़े फास्टैग जिहड़े लग्या करने हुण टोल प्लाजियां ते ये रीचार्ज करवाने पैने आ। किसानां बदले तो लोकां वांढे बड़े वेखे, रिश्तेदारां को बड़े गए भी जदों दिल्ली तो पंजाब नूं जाना कोई टोल प्लाजा नहीं है, जांदे जिवें भूआ दे विआह चले हुंदे ने, ऐ नज़ारे ना कोई रोकण वाला नहीं। हुण पता लगना जदों अगलियां ने कहना 150 दे के लंघ, फिर पता लगना एक किसान बैठा सी, किसान की पावर किड्डी वड्डी सी। आम झंडे वाले नूं किसी पार्टी का झंडा लगा होवे अगले घेरदे सी, किसानी का झंडा लगा होवे ते पुलिस वाले आंदे लंघ जो भाई इहदे नाल पंगा ना लिओ, 5 बंदे इत्थे भी आण के बह जाने जी। मैं पिछले दिन ही कानपुर गया, उत्थे मैं क्या दुकानदार वीरो ओ मेरे भरावो, ये ना सोचियो भी ये कला किसानां दा अंदोलन है। मैं अज नाल ना तुरे, जिदन तुहाडे प्रति कोई कानून पास होया तो इन्हां नाल नहीं जे खलोना, तगड़े हो जाओ। ਸਿੰਘੂ बार्डर एक हिंदू वीर की दुकान पर गए, उदों असीं आया नूं अजे 15 दिन होए सी सानूं। असीं कुछ समान लैण गए, साबण वगैरह कुछ शैंपू चाहिदा सी, ते असीं उहनूं हੱਸ के कहा वीर तुहानूं लगदा होना आ जिहड़े पग्गां वाले ने ये कमले ने आण के इत्थे बैठे, असीं जंग अपनी नहीं लड़ रहे, असीं जंग तुहाडी भी लड़ रहे हैं। कहंदा वो किवें? मैं कहा जे किसानां दीयां जमीनां खुसणगीਆਂ ना ते रहना छोटा दुकानदार भी नहीं। अगलियां बड़े बड़े मॉल खोल देने ने, छोटी दुकान रहन नहीं देनी। उन्हें कहना जिन्हें समान खरीदना इत्थे आण के साडे मॉल तो सब्जी उत्थों खरीदो, फ्रूट उत्थों खरीदो, आटा दाल गुड़ घ्यो इत्थों खरीदो, तो तुहाडी दुकान तो 4 जी पलदे होणगे ना? कहंदा बिल्कुल सरदार जी पलदे ने। मैं कहा बस किसान तुहाडी जंग लड़ रहा है, एक अपनी डाह के बैठा है। तो 700 तो वध लाशां गईयां ने पंजाब की धरती ते। टिकरी मावां दे उत्तों दी ट्रक चाढ़े गए ने। लखीमपुर खीरी नछत्तर सिंह की 52 साल उम्र सी, लवप्रीत सिंह, दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह 3 22 साल के नौजवान सी। एक रमन पत्रकार, उसकी भी उम्र 22-25 साल सी। सारे 4 पंजाबी सी, 5वां रमन पत्रकार। 52 साल का एको सी उन्हां चों नछत्तर सिंह, बाकी 4 22-22
21-22 ਕੁਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਦੀ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-2 ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵੇਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈੱਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦਾ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਧੁਲੇ, ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ, ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए, क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए। वाह वाह, क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए, क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए। वाह वाह, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए, चाले मूल गवाए, चाले मूल गवाए, चाले मूल गवाए। क्या पाया जग आए अंधुले, क्या पाया जग आए, क्या पाया जग। गुरु नानक साहब महाराज कहते क्या पाया, एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया चिन्ह है, की प्राप्त किया ही जगत विच आके, क्या पाया। जग आए अंधुले, हुण अन्ना कौन है। हुण जिस बंदे दी निगाह काम नहीं करती, जिहड़ा बंदा नेत्रहीन है, कल नूं कोई कहेगा ये शब्द तो फिर उहदे ते टुकदा है। जिहड़े बंदे कोल अखां नहीं, वो कहेगा शब्द मेरे ते टुकदा नहीं। ध्यान नाल सुणिओ,
ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਧੁਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਕੁੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ 'ਚ ਗਾਇਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਬਿਖ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਤੋ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਹੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੰਦੇ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੰਦੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, ਤੂੰ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਢ, ਧੁਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ। ਕੰਮ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਲੈਨੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨੀ ਕੋ ਬਾਵਰ ਬੇਖ ਸਿਓ ਗਹਿ ਰਹਾ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਚ ਬਾਦਰੇ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਾਚ ਬਾਦਰੇ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਵੀ
तू तो अपनी जिंदगी दे विच जहर ही इकट्ठा। भगत धन्ना जी का वाक है, भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, ताना माना, जिन्होंने बाणी आउंदी नाल नाल पढ़ो, तन नहीं तीरे लालच बिख। लालच जहर है जिहड़ा बंदे नूं हौली हौली मारदा। एक जहर हुंदी तुसीं खा लो तो बंदा 10-15 मिनटां 'ਚ प्राण त्याग जांदा, पर लालच बंदे नूं हौली हौली मारदा, भरा नूं भरा कोलों खत्म करा दिंदा। तुसीं वेखो जो बंदा लालच करदा ना, अंदरों खत्म हुंदा जांदा हौली हौली, ਐਨ ਸਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭਦ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे। इस मन बौरे नूं जहर वाले फल बड़े मिठे लगते हैं। चार विचार ना जानिया, इनू सुंदर विचारां चंगियां नहीं लगदियां। गुण ते प्रीत बड़ी अन भांति, गुणा नालों प्यार घट गया ते अवगुणा नाल प्यार वध गया। समाज विच ना लोग अवगुण वध इकट्ठे करते हैं। लोक अवगुणा की बने गंठड़ी। क्यों साध संगत जी, आप मार्केट में जाने, जिहड़ी चीज़ खरीदे अपने घर च इकट्ठी होंदी जाती है ना। कपड़े खरीदे, कपड़े इकट्ठे होंदे जाते आ, ग्रोसरी आप अपने जिहड़ी चीज़ बाजार चों लैने तो जिहड़ी चीज़ घर पई होवे लोड़ पैण ते वरत लईदी है ना। क्यों साध संगत जी, मेरियां सियाणियां भैणां बैठियां जे रसोई दे विच किचन च आप अपने घर च समान इकट्ठा कीता है। कोई भी वस्तु तुहाडी रसोई च पई होवे, तुहाडे किचन च पई होवे, भावें रोज़ ना वरतो, पर जे पई है तो एक दिन वरतोगे जरूर तुसीं। जे पई है तो वरती जानी है, क्योंकि पई है। तो जे दुनिया के लोग अवगुण इकट्ठे कर रहे हैं, जिदन लोड़ पई अवगुण वरतणगे भी ना फिर। क्यों साध संगत जी, जे अवगुण इकट्ठे हो रहे हैं तो अवगुण वरते भी जाने फिर। हुण सियाणियां दी कहावत है, कहते घर च वैपन रखना ना, भावें लाइसेंस ही रखना, हारी सारी बंदा अपने घर च वैपन नहीं रख सकता। वैपन रखने लई सहज बहुत चाहिए। तुसीं वेखिआ घर च गुस्सेखोर जी होवे ते कहते वैपन लुको के रखो, पता नहीं इहनूं गुस्सा चढ़ गया तो ये हथियार लैके ते अपने घरदिआं दे दुआले ही हो जाए। हथियार रखने वास्ते बहुत सहज चाहिए बंदे दे कोल, धीरज। जे घर च पिया तो बहुते लोगों ने अपने घरदिआं ते भी चलाए ने, घरदिआं ते नहीं चलाया तो अपने आप ते चला लिया। हुण जिहड़ी चीज़ तुहाडे कोल होएगी सुभाविक है तुसीं वरतोगे। हुण सतगुरु जी की कहंदे ने, लोक अवगुणा की बन्नै, बोलो सारे, गंठड़ी। हुण गंठड़ी है, पंडां दियां पंडां अवगुणां दियां बन लियां। गुण ना विहाजै कोए, गुण इकट्ठा करदा कोई? ध्यान नाल सुणिओ गल नूं। आपां जदों भी अपनी गलती छुपाउणी होवे, किहदा नाम लैने भला? जिन्ने भी गलत बंदे हुंदे ने, मान लो किसी दी अपने प्यो नाल नहीं बनती, किसी दी अपने पुत नाल नहीं बनती, किसी दी अपने घर वाले नाल नहीं बनती, घर वाली नाल नहीं बनती, वो अपनी उस नलैकी नूं छुपाउण लई पता किन्हां दा नाम लैंदा? जिन्हां दी होर नहीं बनती। क्योंकि उन्होंने पता मैं जे उहदा नाम लिया तो फिर मैं गलत साबित हो जाना। वो कहना मैं कल्ला थोड़ा गलत हाँ, वह भी तो गलत है कहना। उन्हें फिर गलत बंदियां दी एग्जाम्पलां सैट करनियां ने भी आ भी बंदा इदां है, आ भी बंदा इदां है, आ भी बंदा इदां है। लोक अवगुणा की बन्नै गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोए। गुण कोई विरला इकट्ठा करदा, अवगुणा दियां पंडां बन लियां, लोड़ पैण ते फिर अवगुण ही वरतने ने। पातशाह दी बाणी कहंदी है, अंदले क्या पाया जग आए। हे अन्या बंदिया, की जगत विच आण के प्राप्त कीता? राम हृदय नहीं, राम नूं रमे होए परमात्मा नूं हिरदे च नहीं वसाया।
ए शरीरा मेरेया, सारे बोलो जी, ए शरीरा मेरेया इस जग में आए के कर्म कमाया, जा तू जिन हर तेरा सो हर। प्यो सारी जिंदगी ला के घर बनावे तो जो घर बन जाए प्यो जोगा कमरा ही ना हो घर च। क्यों साध संगत? पापा जी कितने है? पापा जी वास्ते कमरा है नहीं। क्यों जी? प्यो नूं चंगा लगू? बोलो साध संगत जी, नहीं चंगा लगू। तो आ शरीर किहदा बनाया? ये शरीर किहदा? मालक दा। वो हैगा अंदर, ओदी ते गल ही कोई नहीं सुनता। ये शरीर किहने बनाया? ये शरीरा मेरे इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। वो मन च वसाया ही नहीं, उहदे नाल सांझ पाई नहीं। एक चीज़ का ख्याल रखियो, गंदगी हमेशा लोग उत्थे पाउंदे आ जिथे जगह खाली तो तुहाडी कोठी है, तुसी अपने घर च रहिंदे आ। आम आदत हुंदी ना आपां नूं अपना घर की सफाई करके। हुण तां बहुत सरकारां ने प्रबंध कर दिते भी तुसी अपना वातावरण साफ रखण लई लागे लागे सफाई रखो, भावें फिर भी लोग बधो बधी गंदगी पा दिंदे ने। मान लो एक 10 मरले का तुहाडे गवांढी एक प्लाट पिया खाली पिया, आपां नूं आदत पै जांदी कई वारी अपना घर सफाई करदे आ, कोई फ्रूट के छिलके पे जो भी कुछ खादा आप सुट आने उत्थे, उत्थे ढेर लग जाता। सुट्टी गए, किसी ने पूछया नहीं, पर समा पा के जिहदा प्लाट सी उन्हें लिया के उत्थे अपना घर बनाना शुरू कर दिता, कोठी पा ली, अपने बच्चों समेत रहन लग पिया। तुसी पहलां दी ओह आदत पाल के फिर समान इकट्ठा करो, सफाई करो अपने घर की। उत्थे करकट सुट्टण जाओ, कूड़ा सुट्टण जाओ, वो सुट्टण देवेगा जी? बोलो सारे। वो की कहू अग्यों, भाई पहला इत्थे कोई नहीं सी रहिंदा, खाली सी, तुसी सुट्टी गए, हुण इस प्लाट का मालिक मैं अपने परिवार समेत आण के रहन लग पिया हाँ। हुण तुहानूं मैं अपने घर की गंदगी इत्थे सुट्टण नहीं देनी। हुण सुनियो, आ हरदे दा प्लाट खाली आ, जिहड़ा मर्जी इधरों 2 गल्लां आण के कचरा सुट गया, कोई इधरों सुट गया। जदों आ गया इत्थे अपना करता घर, फिर इदां आवाज़ आऊगी, नस वंजो भाजो, किल वेखो अगे करता घर आया। हुण करता घर आ गया, भाजो। हुण तुसीं कई बंदे कहंदे फलाना बंदा मेरे को चुगली कर गया, तू कन अगे कीते ते कर गया ना। क्यों जी? तुम टूटी अगे बाल्टी करोगे तो पानी भरू? बोलो प्यारे हो। हुण तुसी बाल्टी मूधी करके टूटी खोल छड्डो, पानी पऊ विच? हाँ, पैना ही नहीं। हुण आपां भी कंन दियां टूटियां पूरियां कीतियां हुंदियां ने, पाठ सुन लगियां वासियां आउंदियां, गुरबाणी सुन लगियां मेरा लक दुखदा, ते किहे दियां चुगलियां करके वेख लो, जे बंदा अद्धा घंटा वासी लै गया तां आखिओ। कई बंदे राह च खलो के ना लाते लात रख के इदां 20-20 मिनट गल्लां कर लेंदे, 15-15 20-20 मिनट गल्लां इदां एहदियां ओहदे को, एहदियां ओहदे को कर करा के स्वाद लेंदे विचों, स्वाद रस भालदे इन्हां कम्मां चों, मिलना कख नहीं। हुण जिहड़ा बंदा तुहानूं कहंदा ना मैं फलाना बंदा मेरे को चुगली कर गया, इहदा मतलब तूं ओहदे कोलों गल्लां सुणियां ने, उन्हें तां ही कीती। तुसीं सीधा कहो भरावा जे गल करनी उहदे नाल कर, मेरे लागे आण के इहो जी फालतू गल ना कर, मेरे को टाइम है नहीं। बाणी पढ़न का साढ़े को टाइम है नहीं, किताबां पढ़न का साढ़े को टाइम है नहीं, चंगियां विचारां करन का साढ़े को वक्त है नहीं, माड़ियां गल्लां कर ली वक्त ही वक्त है, टाइम ही टाइम है, जिन्ना मर्जी साढ़े को कढा लो। हुण सुख ना हुण तक किसी दे कोल बहण की भी लोड़ नहीं। आप की नां लैण लगा भला मैं, मोबाइल वे लो, मैं बोलिया नहीं ना भी आ सुख ना ये जो हैगा, ये एक बारी रीचार्ज कराइए तो 2.5-3 महीने लोड़ नहीं, फिर ना ये वो मुकना ही आ, कोई लिमिट ही हैगी आ। वो तो बाद च कहते अज मेरा कन जिहा दुखदा, सुन सुन के कन जिहा दुखदा मेरे को। हर चीज़ की कोई लिमिट है ना,
तू घंटिया बधी इधरों उधर काम चली जाता। बस बाणी पढ़न बाणी विचार वाले बने साढ़े को वक्त है नहीं, मेरे को टाइम कितने हैगा जी। माड़े कमां लई किन्ना वक्त ही वक्त है। अंधले क्या पाया जा गाए, राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए। हुण इहदा असर कित्थे पिया, सुने हुण 1126 नंबर अंक ते शब्द है, भूंडी चाल। जे बंदे दे अंदर सच नहीं ना होएगा, उहदी चाल बेढब्बी होऊ। जिस बंदे दे अंदर सच हुंदा ना, उहदी चाल नराली होऊ जिंदगी विच, ਐਨ सोहना तरू एनर्जी नाल भरिया होऊ। ਉਹ कदी बजुर्ग दिसू ही नहीं, वो तो गुरमुख बुढ़े कदे ना ही, जिन्हें अंदर सुरत ज्ञान। ते जे बंदे दे अंदर सच नहीं, फिर मनमुख बालक बिरध समान है। फिर मन दे पिछे तुरन वाला नौजवान भी बुजुर्गों नालों भैड़ा है। भूंडी चाल, भूंडी का अर्थ बेढब्बी चाल हो गई जिंदगी की। चरण कर खिसरे, पैरों च ताकत ही नहीं कि चंगे बन्ने तुर सकन। भूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा, तुचा मैंने त्वचा, स्किन चमड़ी, दे कोमलानी। साध संगत जी, जिदन बंदे दे अंदर सच्ची खबर आउंदी है तो तुहाडी स्किन भी नाल खिड़दी है। कदी नोट करियो, जदों तुहानू कोई मैसेज सुनेहा माड़ा आउंदा ना, उहदा असर तुहाडी चमड़ी ते भी पैंदा, स्किन ते भी। तुसीं खुश रहो, तुहाडी स्किन अपने आप खिड़ेगी। ते जे तुहाडा अंदर सड़िया होगा ना, जिन्ने मर्जी। कई बंदे कहेंगे इनू बड़े बदाम भें के दिन्ने आ, अखरोट भी 5 भेंदे, 4 बदाम भी 10 भेंदे, लगते नहीं। वो अंदर तो भट्ठी बली है। हाँ जी, अंदर तो भट्ठी है। बाहर दे जिन्ने मर्जी पाउडर क्रीमां लाई जाओ, ये तो वक्ती आर्टिफिशियल जिहा काम है। जे अंदर सच होएगा तो फिर तुहाडी स्किन, तुहाडा शरीर का कल्ला कल्ला अंग खिड़ेगा। एवें थोड़ा बापू ने आख्या सी, नानक भगतां, उच्ची बोलो, सदा विकास। हुण सानू आंदे आ हसो, हसना बड़ी चंगी चीज़ है। हसो, रोटी खा के 10 मिनट हस पो, तुहाडी रोटी पच जानी है। हुण सानू उदां हासा आउंदा नहीं, आपां नकली जिहा हासा हसदे आं। आ वेखिया ना, रामदेव ने लोगों को कहा जाके पार्कां च हसो, वो असली हासा नहीं हैगा, वो हा 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 इदां उच्ची उच्ची पार्कां। ये पता कौन लोग ने जिन्हां दे घर च ना नूंह पुत्त ना कदी हस के वेख्या, फुੱਲ नूं ही आंदे आ, तू मेरी नूंह, तू मेरा पुत्त, तू मेरी धी। घर च ते बीमारी पैंदी हसन लग्या ना, सारिਆਂ ने मूँह वट्टे, एक दूजे नाल गलबात नहीं करते। मैं मर लगा, मैं उत्थे चलिया, मैं उत्थे चलिया। वजह की आ, अज पदार्थां ने सुख नहीं दिता, बंदा अंदरों खिजिया पिया, बंदा कलपिया पिया। डिप्रैशन की है? ये कोई बीमारी है? ये की है? कल्ले रह गए, सोची जाने बस। 24 घंटे पुठी गेड़ी दी हुई है। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता। तुसीं वेख्या कई बंदे दे चेहरे वाल वेखो, विआह होगा तां भी मूँह ओहो जिहा, घर च मरिया होऊगा तां भी मूँह ओहो जिहा। कहंदे इहदा मूँह 24 घंटे इदां दा रब ने इदां माड़ा मोटा हिलदा हुलदा नहीं। तो कई बंदे तुसीं वेखो, उन्होंने चेहरे वाल वेख के तुहानूं लगना यार ये 24 घंटे हसदा रहिंदा ना। क्यों सा इदां हुंदा ना। कई बीबियां इदां हुंदियां, तुसीं वेखो तो वो खिड़िया हसना, तो कईयां दा ऐ जिवें करेलियां दा नहीं वो पीता हुंदा कढ के, की जूस हुंदा माता जी, आहो रस जिहा कढ के पीना, ऐ खिजे रहना जिवें निम घुट के पीती हुंदी। भी तू हस पा। खेड़ा वेखना सी ते ट्रालियां च बजुर्गों का वेंदे किते। वीर तेजपाल सिंह बैठे जो गए उत्थे, तो एक बजुर्ग नूं ट्राली तो लत्तां लमका के बैठे, कहते बापू जी की हाल है, चढ़दी कला। तो बजुर्ग का जवाब एडा कमाल का सी, कहंदा पुत्रा पैरों च पई पग सिर ते आ गई, सानूं होर की चाहिदा। आई ना पग सिर ते। मैनू एक इत्थे कुंडली बार्डर एक वीर आंदा जी इस अंदोलन का फायदा की। मैं कहा मैं दस दिना। मैं क्या अगे तो कोई बंदा पंजाब तो कि इतों कितों भी कोई बंदा किसी गैस स्टेशन तो तेल पाउण जाएगा, कहेगा यार पर्स घर रह गया, पर सिर ते होवे पग, 4000 का तेल पिया, अगला कहेगा वेख ला जे विश्वास करदा, अपना अकाउंट नंबर दे, घर जाके पैसे भेज दूँ। अगला सोचू जरूर एक बार, ये वो कौम है जिन्होंने इत्थे अंदोलन लड़दियां लंगर ला छड्डे, ये मेरा 4000 रखेगा नहीं, मैनू 4100 घर जाके पाएगा। इस अंदोलन ने विश्वास कमाया है।
ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆ ਕੂਲਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਨਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੂਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੇਡੋ, ਘਰ 'ਚ ਹੱਸੋ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ 'ਚ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਫਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੰਗ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਤਵਚਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਵਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ ਕੁਮਲਾ ਗਈ, ਮੁਰਝਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੁਰਝਾਏਗਾ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਧੁੰਦ ਆ ਗਈ। ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚੰਨ ਹੋਆ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਦੁਐਖ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਆ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਰੋੜ ਕਚੋੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਏਡੀ ਨਖੱਤੀ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ? ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਹਾਂ, ਅਖਰੋਟ ਭੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਾਮ ਭੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਚੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਢੇ ਚੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਗੇ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ
मैं बोल के अंदर जा वड़ना, अगले ने घसोन मार के तुहानू बाहर कढ़ देना, तो फिर 26 का परचा हुंदा जदों दंद किसी दा टुट जाए। तो लड़ाइयां जबान तो पैंदियां, पर जबान ते सट नहीं लगती, सट किसी शरीर के होर अंग ते लगती है। जेबा जेबा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब। अज जो अपने घर जवाक हुंदा ना, बच्चा हुंदा, तो जो वो साल डेढ़ साल बाद माड़ा माड़ा बोलना सीखता, तो आप अपने घर च अक्सर नहीं कहते हुण बोलन लग पिया सुख ना, ये ताता पापा चाचा ये कहन लग पिया, आप इधर कहने बोलन लग पिया। पर सतगुरु जी कहते बोलना तो सारी जिंदगी नहीं आता, शब्दों का बोलना ही बोलना थोड़ा। ये तो बाबा बोली है, पद होए उत्तम से दर उत्तम कही है, नीच कर्म बह रोए। शब्द वो बोलो जिहदे नाल तुहाडी इज्जत होवे, सत्कार। बाबा बोली है, पत होए, इज्जत होवे। तो इससे कहते जेवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। जदों बोलदी फिका बोलदी। संत जना की निंदा व्यापस। संत कौन है? गुरु। निंदिया की आ? गुरु की सिक्ख्या तो पासा वटना, आ है गुरु की निंदिया। संत शरण जो जन पर है, सो जन उदरन हार। अगे बार बार अवतार। अच्छा, जो गुरु अर्जन साहब अष्टपदी लिख रहे आ, उन्होंने सामने किहड़ा इहो जिहा संत बैठा सी जिहदी शरण पैण लई सिखां नूं कह रहे होणगे? भला जो इदां कह रहे होणगे संत शरण जो जन पर है, सिख पुछदे होणगे महाराज किहड़ा संत है जिहदी शरण च पैण लई कह रहे हो सानूं? आ ते 1905-10 तो बाद पैदा होए आ जिहड़े आड़े खट्टे पीले जिन्ने भी हैगे हुण दिस रहे आपां नूं, बरसाती डड्डू, कोई किस तरह तुरदा, कोई किस तरह तुरदा। देखो ताइयों नहीं अपनी बनती, आप सीधी जी कहने तो 1905 दियां देन आ। जो साका ननकाणा वापरिया 1919 च, 19 फरवरी 1919 च साका ननकाणा वापरिया। ये मैं स्टेज ते गल बोली, एक संप्रदा वाला दसे भी साडा इन्हां विच आ सी। ये मैं दोबारा बोल देना, 1921 नूं साका ननकाणा वापरदा है, 21 फरवरी नूं। 1919 नूं जलियांवाला साका वापरदा है, 21 फरवरी 1921 नूं फरवरी दे विच जदों साका ननकाणा वापरदा है, एक भी कोई संप्रदायी डेरेदार दसे भी इन्हां विच साडा आ बाबा सी। आम किरती बंदे भाई लक्ष्मण सिंह वर्गे सी जिन्हां ने आम शहादत दे जाम पीते। ये तां बाद विच पैदा होए सारे ही, जिन्ने भी आ संप्रदावां डेरे बाद विच पैदा होए। फिर जाके मर्यादा बनी 32 च, 45 तक उहदे ते विचार चर्चा हुई। पर साडा समस्या यह है भी साडी कौम नूं आप पढ़न की आदत, उच्ची बोलो, है ही नहीं है। हुण मेरा सवाल आ भी गुरु अर्जन साहब जी कहते संत शरण जो जन पर है, ਇਹਦਾ मतलब जे तो संत कोई बंदा तो सानू गुरु अर्जन साहब किसी बंदे की शरण पैण च कहणगे? भला सोच के वेखो, भला अपनी सुर ते जोर पाओ। फिर किहड़े संत की शरण पईए? संत तो इत्थे वखरे वखरे आ। मैं किहड़ी संत की शरण च पवां? वो संत रब आ, वो अकाल पुरख आ जिहड़ा हर एक दे हिरदे च समाया होया। आओ अपने अपने हिरदे च बैठे संत रब परमेश्वर उहदी शरण च पैण दा अर्थ है अपने अंतरात्मे टिक जाओ। भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी। हुण पहला भाग हुआ गुर संत मिलाया कहता, अगे प्रभ अविनाशी घर में पाया कहता। यानी कि प्रभु परमात्मा ही संत है जिहदी शरण च पैण लई मैनूं गुरु पंजवें पातशाह जी कह रहे हैं। मैनूं अपने गुरु दे हुंदिआं किसी होर संत बाबे की लोड़ नहीं है। जिहड़े हैगे वो मन्नी जाण, पर मैं अपने गुरु दे उत्तों ही कुर्बान होना है। रहो संत हों टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखों ए पंडित मिठे। एवं थोड़ा पटाने के आसी। इस करके संत सभा जी संत सभा है उन्होंने निंदा व्यापस। पशु भए अपने गुरु की सिक्ख्या तो पासा वटिया तो पशु बन गया। कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया। अमृत का रस किसी विरले ने पाया।
अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए। जिहड़े अपने गुरु दे नाल मिलाप हासिल कर गए उन्होंने ही ये रस प्राप्त किया है। जब लग शब्द भेद नहीं आया, ਜਦੋਂ तक अपने शब्द, साध संगत जी तुसी किसी डॉक्टर को दवाई लैके आओ, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ दवाई का भेद नहीं तुसी खाओगे किदां? पहला दवाई का भेद जानते हैं, ये खाना खाण तो पहला खानी, ये खाना खाण तो बाद च खानी, किन्नियां अगला इन्ना लिफाफा भर के गोलियां का दे दिंदा, वो चो किहड़ी किहड़े टाइम खानी है, इसका भेद होना जरूरी है ना कि नहीं? भेद तो की अपने गुरु के शब्द का भेद है? पढ़िया मैं अपना गुरु कहता की है, सानू गुरु की सिक्ख्या की है? जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए। उदों तक विषय विकार काल सानू सताउंदा रहू ਜਦੋਂ तक मैनू अपने गुरु के शब्द का ज्ञान बोध प्राप्त नहीं होंदा। जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए। अन को दर घर कबू न जानस, एको दर सचियारा। फिर जिन्हों समझ आ जाती है ना, वो इक्के दर दे नाल सांझ पाउंदा। वो अन को दर घर कबू ना जानस, वो अपने प्यो बापू तो बिना किसी दूजे दर दे उत्ते जाण दा यतन करदा ही नहीं। अन को दर घर कबू ना जानस, एको दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुरु दे प्रसाद सदका उन्हें वो अवस्था प्राप्त कर ली जिथे एक भी माड़ा फुरना नहीं आउंदा, एक भी माड़ा ख्याल नहीं आउंदा। नानक कह विचारा, नानक ये विचार दिंदा है। साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब जिन्हां दे पावन शब्द की विचार आपां संक्षेप शब्दां सांझी कीती है। भैरव राग का शब्द 1126 नंबर अंक ते शब्द का सार अंश इहो ही है। आओ अपने आप को सवाल करिए, की लैण आया जगत च? चंगे काम किन्ने कीते, माड़े किन्ने कीते? आओ अपनी जिंदगी चंगे कामां की गिनती वधाइए, माड़े कामां की गिनती अपने आप घट जानी है। हनेरा है कमरे च, उन्होंने भजाउण दा इक्को तरीका रोशनी कर दिओ, दीवा बाल दिओ, हनेरा अपने आप दूर हो जाना है। गुरबाणी से जग में चानण कर्म वसै मन आए। अपने घरां च सहज पाठ करो, बाणी पढ़ो अपने लिए, भावें एक शब्द रोज़ पढ़ो, एक पंक्ति रोज़ पढ़ो, पर गुरबाणी आप पढ़न की कोशिश करो। समझो, चंगियां विद्वानां दियां घरां च किताबां रखो, ਸਾਹਿਤ अपने घरां च रखो, रुचि पैदा करो सतगुर की बाणी पढ़न विचारन समझण की। तां ही साडा गुरु दे कोल आउण दा फायदा है, लाभ है। मालिक कृपा करे सारी संगत दा तह दिलों धन्नवाद जो अपनी रजेवियां भरी जिंदगी चो समा कढ़ के सतगुरु जी की गोद विच बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। गुरु साहब बख्शिश करन, गुरु की विचार साड़ी जिंदगी का आधार बने। सारे वीरां दा, भैणां दा, बजुर्गां दा, मातावां दा मैं अपने वालों फिर किसानी अंदोलन की सफलता वास्ते ये 3 काले कानून रद्द कराउण ते जित तक लिजाण वास्ते जो तुसां सहयोग दिता, दिल दीआं गहराइयां विचों आप सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, भैणां दा, वीरां दा, बजुर्गां दा ते तमाम गुरुद्वारा साहब दीआं प्रबंधक कमेटियां, रागी जथे, ग्रंथी साहबान जिन्हां ने भी अपने वालों योगदान पाया, मालिक सारिआं नूं चढ़दी कला, तंदुरुस्ती, देह आरोगता बख्शिश करे ते अपने च इदां ही प्यार बनाई रखे। असीं एक दूजे दे काम आउंदे रहीए, गुरु दी विचार साडी जिंदगी दा आधार बन जाए। इन्नियां के बचन प्रवान करने, भुल्लां मेरियां बचन गुरु दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करना जी। अदब सत्कार नाल सारी संगत फतेह बुलाओ ते बहुत प्यार नाल आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।